कोशिश कर रहे हैं देश भर में, पर अगर मैं समझती हूँ कि मैं कॉलेज गई इस वजह से मैंने वो जिंदगी जी जो कॉलेज के बाहर नहीं मिलती। जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी ब्लूम करती है कॉलेज में और कहीं नहीं होता। तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कहती कि सभी को ये जिस तरह से हम लोग ग्रेजुएशन करना चाहिए, या पर जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और इट्स ग्रेट दैट इवन राय यूनिवर्सिटी हैज वेरियस कोर्सेज फॉर वेरियस स्किल सेट्स। सो सिर्फ बीए कर लो या फिर बीएससी कर लो या बीकॉम कर लो, इस तरह से ढांचे में ढालने की हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर आई थिंक एजुकेशन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और आपके नाम से जो स्कॉलरशिप जा रही है लड़कियों को, तो इसके अलावा फ्री एजुकेशन की तरफ आप कितना ध्यान दे पाएंगे? लड़कियों को फ्री एजुकेशन भी देनी चाहिए। मैं समझी नहीं। स्कॉलरशिप्स तो दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने में होशियार होंगे उनको आप स्कॉलरशिप देंगे, बराबर? लेकिन फ्री एजुकेशन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो अंडर प्रिविलेज जो अपने लिए स्कॉलरशिप के लिए पे नहीं कर पाएंगे। हाँ, 12वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई होनी जरूरी है, बिकॉज वो एक स्टिपुलेशन है एंट्री रिक्वायरमेंट कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन जो ऑर्फन बच्चियां हैं और जो अंडर प्रिविलेज मार्जिनलाइज सेक्शन, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं, चाहे उनके 40% नंबर ही क्यों ना आए हों, उनको हम लोग लेते हैं पूरी तरह से। कोई भी कोर्स जो वो कर पाए उसमें डालते हैं। इंग्लिश की खास उनको ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज मेरी खास दोस्त नहीं है अंग्रेजी भाषा, लेकिन आज की इंडस्ट्री में जरूरी है। तो हमने देखा है जो बच्चियां अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, उनके लिए जॉब मार्केट ज्यादा खुली रहती है और उनको ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इसलिए। और विद्या जी के नाम से जो स्कॉलरशिप है उसमें वो हर साल एक लड़की को विद्या बालन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हर साल, चाहे वो 3 साल का कोर्स हो या 4 साल का कोर्स हो, उसके लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। वो हमेशा ज्यादा भी कर सकती हैं। Thank you. We have Sonali who has topped at 98% in the boards, who wants to ask a question. Oh, wow, congratulations. She is 5th ranked in the country. My God. Congratulations, ma'am. I just wanted to ask you, further now, in your movies, I guess your title will now be Dr. Vidya Balan Roy Kapoor, right? I think that will become too long a name. You know, तब तक फिल्म खत्म हो जाएगी शायद. तो we'll, I guess, for credit purposes, we'll stick to Vidya Balan. And congratulations. Congratulations, Vidya. Thank you. Have you ever been in the top 5 rankers in your academics in school? And is there a mischievous side of it? Despite that, I'm a doctor today. No, I haven't ever been amongst the top 5 in my class. I was a decent student, if I may say so, above average, but I've never understood this number game, and I've never vied for it either, even in school and college, and that continues even now. So you were a mischievous, you were on the mischievous side? Oh, Dad. Were you on the mischievous side? Have you ever been, getting remarks in your calendars or something of that sort? No, actually, I think I was fairly calm. I was not notorious, or I wasn't really naughty in that sense. But I participated in a lot of activities in school, whatever I could. And yeah, I was a prefect most of the time. I was a class monitor. So I think I was on the other side. I would write everyone's names diligently on the board when they spoke.
And since you mentioned in the very beginning that you have a film coming out which is the most closest to your heart, so why hasn't there been any promotions, promotional activity for the film as yet? We have been doing interviews, and that's the extent to which we are going to promote the film, because people have reacted overwhelmingly to the trailer and the songs. And I think the film will draw people into the theaters, We're not going to hard sell. This is a film that doesn't need hard selling. It's only heart selling again. Thank you. Vidya, your initiative of cleanliness in rural areas has inspired one girl from West Bengal. उसने अपनी शादी तोड़ दी क्योंकि उसके होने वाले इन-लॉज के घर पर वॉशरूम नहीं था. तो what's your reaction on that? Like, it's a good news for you, or? It's great. It's very gratifying. It's very fulfilling to know that something that I've been part of has had such a strong impact, and it's far-reaching. We're getting news from various parts of the country, similar stories. And it's really extremely fulfilling. I recently heard that a girl from Maharashtra was given a portable toilet as a wedding gift by her parents because there was no toilet in her marital home. So I think, boon boon se banta hai sagar. Hopefully we'll get rid of open defecation by 2019, like our Honorable Prime Minister has been saying. Hi Vidya, this is Ishan from News Express. Hi. Vidya, एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखती है. प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो आप किसको, ये 10 साल आपने कंप्लीट किया, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगी, या कौन था वो गुरु जिसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस बॉलीवुड की दुनिया में? I think first and foremost प्रदीप सरकार, दादा. उन्होंने मुझ में विश्वास, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती. प्रदीप सरकार. Yes, please. Yes. Jigar. Thank you. Oh God, अब मैं क्या कहूँ, हर मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास. Thank you all very, very much. Thank you. हाय विद्या, डॉक्टर विद्या. हाय आलोक. हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ, अभी आप थोड़ी और बेहतर हो गई हैं. नहीं तो पहले थोड़ी सी नर्वस हो रही थी. सवाल ये है कि ऐसा मौका पहले कभी आया था स्कूल में, कॉलेज में, जब पूरी फैमिली हो और आप इस तरीके से मंच पे हो और उनको फेस करना पड़ा हो आपको? हाँ, एक्चुअली मैं सही बताऊं, शायद मैं नर्वस हो गई क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ है. हाँ, ऐसे मौके रहे हैं जब मेरी पूरी फैमिली रही है, पर अब वो पूरी फैमिली और बड़ी हो गई है शादी के बाद. तो थोड़ी और नर्वसनेस भी बढ़ गई है. पर अब मैं ये ठीक से बोल पा रही हूँ. बेहद खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है. मैं राय यूनिवर्सिटी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. इतना बड़ा सम्मान इस उम्र में और करियर के इस मोड़ पे, जबकि मैंने 10 साल कंप्लीट किए हैं फिल्म्स में. 10 जून को मेरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे. और 12 जून को एक बहुत खास फिल्म, मेरी बहुत दिल के करीब फिल्म हमारी अधूरी कहानी रिलीज हो रही है. तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है. शायद मैं
शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाऊं। हाँ उषा। हाय विद्या, जैसा आपका नाम है विद्या, और यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके नाम से फ्री एजुकेशन दिया जाएगा लड़कियों को, तो आपको लगता है कि आपका नाम सार्थक हो गया? बिल्कुल। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्कूल में थी और 9th स्टैंडर्ड में थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था क्लास में। हमारी प्रिंसिपल जो है क्लास के अंदर आई और उन्होंने देखा कि मैं ये शोर शराबा का एक हिस्सा हूं और मैं कुछ कर रही थी मस्ती। तो उन्होंने कहा, अपने नाम का मतलब समझती हो? मैंने कहा हाँ। कहा विद्या का मतलब क्या है? मैंने कहा नॉलेज। सो शी सेड, तुम्हारे तो पास से भी नहीं गुजरी है नॉलेज। आज मैं उनसे जाके कहना चाहूंगी कि मुझे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है और मेरी माँ के लिए और मेरी फैमिली के लिए एजुकेशन सबसे अहम था। एक्चुअली ये साउथ इंडियन ट्रेडिशन है। एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज नहीं हो सकती। और जबकि मैं मानती हूं कि हरबीन और मैं बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जिस तरह से हम एजुकेशन को परसीव करते हैं वो एक तरह से लिमिटिंग हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग स्किल्स होते हैं। फिर भी मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, माय पेरेंट्स सेड एक्टिंग करनी है कर लो, पर एजुकेशन बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री बहुत जरूरी है। मैंने तो मास्टर्स कर ली, सोशियोलॉजी में मैंने अपनी मास्टर्स कर ली, पर academics have been most important and therefore I feel that has made a huge difference in my life. मैं ये तय कर पाई हूं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या सही लगता है। मैं जिंदगी में बहुत सारे चॉइसेस मैंने किए हैं जो शायद ये अपॉर्चुनिटीज मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं नहीं ले पाती, अगर ये एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस ना होता। क्योंकि सिर्फ हम लिटरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन इज ऑल एनकम्पसिंग। सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव had this educational background and then to have this academic recognition as the Doctor of Arts is really very, very humbling. अच्छा विद्या, आपको क्या लगता है, पहले एक वक्त था जब औरतों को या लड़कियों को एक्टिंग की तरफ आना अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छे परिवार की लड़कियां नहीं आया करती थी। आपको जिस तरह का अवार्ड मिल रहा है, जिस तरह से ऑनर मिल रहा है, तो लगता है कि अब वो चीजें वैसे खुल चुका है और ज्यादा खुलेगा, इस तरह की उस तरह की और अच्छे परिवार की लड़कियां आएंगी? हाँ, मैं तो कहूंगी कि वही होता आ रहा है कुछ सालों से मतलब कुछ ये जो धारणा है लोगों की वो बदल रही है। पहले लगता था कि और कुछ नहीं कर सकते, जैसे आर्ट्स के बारे में भी ये था, अच्छा आपको अगर ज्यादा मार्क्स नहीं आए या ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आर्ट्स कर लो ना, कोई नहीं है। आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसी एक्टिंग की भी कोई वैल्यू नहीं। बाकी सब आपने प्रोफेशंस ट्राई कर लिए और कहीं आपका कुछ हुआ नहीं तो फिर आप एक्टर बन जाओ। एक्टर तो कोई भी बन सकता है, इसीलिए वैल्यू बहुत कम थी एक्टर्स की। But I think I have seen that change, and I think a lot of my contemporaries have contributed to this changing perception of the female actor, and I feel very proud to be working in films at this time. Congratulations. Thank you. Dr. Vidya, congratulations. Thank you. Okay, since you were talking about values, your parents must have definitely inculcated all the ethical values as you were talking to us yesterday also. Would you reminisce something and tell us in particular? Oh God. If you had to, I think first and foremost, my parents have instilled
that honesty is really always the best policy, even though sometimes it's really difficult to be absolutely honest. And most importantly, be honest to yourself. I think that's what I've tried to do so far. You know, I try and be honest to myself first and foremost, and then everything else follows. And that if you respect yourself, you will respect others. So they've never told me that you must respect everyone. They've always told me that if you respect yourself, you will respect everyone else. Yeah. हेलो विद्या जी, आरती सक्सेना। हाय। हाय। आपके हिसाब से आप तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं हीरोइंस हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो आपके हिसाब से एक हीरोइन का शिक्षित होना कितना जरूरी है? शिक्षित होना तो सबके लिए बहुत जरूरी है।